Good afternoon to everyone present here. I'm your host for the day, Rashri. And I am Pavni. We welcome you all to the 7th edition of the International Conference ICANN hosted by Delhi Metropolitan Education Media School. ICANN is a prominent annual event focused on media, communications, and cultural studies. Since its inception in 2018, ICANN has evolved into a significant platform for scholars, media professionals, and students to engage in discussions on contemporary media issues. This year, ICANN 7 is collaborating with Kalindi College, Delhi University, a dynamic nexus of academic excellence. Kalindi College stands at the forefront of interdisciplinary innovation. Shroff College, Mumbai, a beacon of entrepreneurial spirit, Shroff College seamlessly integrates academia with industry. And Saka International Organization, a global collective of scientists, academics, and youth activists dedicated to addressing climate change. Saka International Organization, renowned for its commitment to holistic education. It pioneers initiatives that blends academic rigor with real-world relevance. This year at ICANN, we have prominent speakers sharing their wisdom on AI and algorithm. And on behalf of DME Media School, we are honored to extend a warm welcome to our chair, Professor Dr. Umesh Arya. Professor Dr. Umesh Arya is the former Dean and HOD, Faculty of Media Studies in Guru Jambheshwar University of Science and Technology in Hisar. He has a teaching career of 27 years and has written the book Newspaper Vocabulary. He also has over 40 publications in national and international journals and specializes in information power searching and ICT applications in communication studies. And he has developed 24 customized search engines on various subjects. In AI space, Professor Arya sheds light on how AI system processes vast amount of personal and professional data, underscoring the pressing need of privacy safeguard, ethical accountability, and secure data management. Over to you, sir. तो कितनी देर आप बिना खाए रह सकते हो ये बताओ अभी 30 मिनट्स हाँ ओनली 30 मिनट्स चलिए तो इसको हम एग्जैक्टली 2 बजे में फिनिश कर दूंगा राइट हाँ वैसे भी कुछ ज़्यादा बोलने के लिए है नहीं बिकॉज वट यू सी ऑन द स्क्रीन इज़ डिफरेंट फ्रॉम वट हैपन्स बिहाइंड द स्क्रीन और ये दिस सेंटेंस आई थिंक होल्ड्स गुड फॉर एवरी काइंड ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस राइट बी इट द इंडियन आइडल बी इट योर मूवीज़ और यू नो AI जनरेशन जो आपका जेनेटिव AI है ना तो बैक एंड पे जो भी कुछ होता है ना दैट इज़ ऐसा बोलते हैं जो बताया जाता है वो होती है पब्लिसिटी है ना और जो छुपाया जाता है वो होती है न्यूज़ ठीक है ना आई थिंक आप जानते होगे इस बात को सो वी शुड बी मोर इंटरेस्टेड इन बिहाइंड द सीन जो होता है सब कुछ हाँ बिकॉज फ्रंट एंड पे तो पब्लिक को जस्ट एक बताया जाता है कि ओके एंड यू ऑल नो दैट राइट सो by using more AI at the front end is no you know क्या बोलते हैं उसको कोई इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको बट येस बैक एंड ऑपरेशंस पे इफ़ यू नो कि व्हाट हैपन्स देन आई थिंक यस एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए सो एथिक्स एंड AI तो लेट अस सी व्हाट आर एथिक्स क्या होते हैं एनीबडी ethics any rudimentary idea of ethics we are not asking for definition हाँ please hmm. Hmm. हाँ यस वेरी गुड सो कोई बात नहीं सो ओके डेफिनेशन नहीं आती तो कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रॉडली स्पीकिंग जो मॉरल प्रिंसिपल्स जो होते हैं ना हिंदी में बोले तो नैतिकता ठीक है नैतिकता मीन्स कि अब ये अलग अलग तरीके से है हर ऑर्गेनाइजेशंस की अलग एथिकल पॉलिसी होती है दैट वी विल नॉट you know publicize this we will not comment on this we will deal this in this way we will not tolerate this right so ethics they are strictly an internal thing whereas the law is totally external thing right law is same for everybody yes or no
एथिक्स जो होता है वो हर एक के लिए अपना डिफरेंट होता है. फॉर एग्जांपल मेरे एथिक्स में कई चीज़ें नहीं आती जो दूसरे टीचर्स के एथिक्स में आती हैं, राइट, एंड वाइस वर्सा. यस और नो, बट स्टिल एक फ्रेमवर्क है जो आपको पता चल जाएगा. एंड ethics, they can be, approached through common sense in a better way than law. For example, abhi I went to SDFC, so some person was dealing with me for last 2-3 days for credit card, issuing the credit card, right? But on that day that person was not there, somebody else was there. So aapko pata hai in logon ke targets rehte hain. So I said no, I'm talking to that person for the last 2-3 days, or he is devoting time to me. कोई बात नहीं, मैं कल आके कर लूँगा. तो इसका देन द स्टाफ वाज वेरी हैप्पी कि सर कम से कम आप इतना सोचते हो, देखो उनके बारे में, अदरवाइज आप इतना दूर से आए हो एंड आपको तो कार्ड से मतलब है सिर्फ, राइट. लेकिन अब ये मेरा एथिक्स है, ये किसी दूसरे के लिए दूसरा हो सकता है, नहीं मुझे तो सर्विस चाहिए, दैट्स इट. ये आपकी प्रॉब्लम है, राइट, आप यहाँ पे नहीं थे. बट ऑल सेड एंड डन, आपका एक एथिक्स होना चाहिए कि व्हाट इज़ योर स्टैंडिंग ऑन द मॉरल ग्राउंड्स, जिसको कोई देखने वाला नहीं है, जिसकी इम्प्लीकेशंस नहीं है. लॉ इज़ साइलेंट ऑन दैट, बिकॉज एथिक्स और लॉ अलग अलग चीज़ें होती हैं, राइट. लेकिन आप एट द एंड ऑफ द डे आप सोने तो जाते हो ना रात को आराम से, सारा पूरा दिन का बर्डन एक तरफ रख के, तो एथिक्स इट कम्स देयर. सो एथिक्स इज नॉट न्यू. AI एंड एथिक्स ये कोई नई चीज़ नहीं है. आपका ज़मीर क्या अलाउ करता है, राइट, एज फार एज AI इज़ कंसर्न, वो हमने देखना है. फॉर एग्जाम्पल कि मेरा माई एथिक्स डजेंट अलाउ मी टू प्रेजेंट माई PPT हेयर राइट नाउ, इसलिए आई हैवंट ब्रॉट एनी. क्यों? मैं कर सकता हूँ बड़े आराम से पैराफ्रेज करके, ठीक है, and that is AI generated. अब उसमें on one side of the spectrum उसमें कोई गलत नहीं है, because AI system is telling multiple AI systems, for example Gemini, आपका Claude, Mistral, आपका DeepSeek, ChatGPT, so they are generating something on the topic. Okay, what are AI ethics? So generating bullet points, and then I filtered them so that duplicated entries are removed and a set of 10 ethical principles as far as AI is concerned they remain. पक्का ये तो ethical चीज़ है, legal भी है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, right? बट मैं जान के लेके नहीं आया, बिकॉज वो तो आप 2 मिनट में, आप अगर अपने मोबाइल पे, आपको पता है ChatGPT का ऐप है आपके पास, 2 सेकंड में आप जनरेट कर लोगे. बात वो नहीं है. बात ये है कि जो रिसोर्सेज हम लोग यूज़ करते हैं ना अभी इस 30 मिनट्स में, या हमने 2-3 घंटे में वहाँ पे, द लर्निंग शुड बी सब्सटेंशियल सो दैट इट स्टेज इन योर माइंड फॉर सम टाइम. दैट शुड नॉट बी अ लेक्चर, और दैट शुड नॉट बी द रैंडम फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कि ChatGPT ये कर सकता है, वो कर सकता है, टेक्नोलॉजी कैन ट्रांसफॉर्म. ये तो सारा का सारा हमने डिस्कोर्स सुना हुआ है, बट हैज इट रिजल्टेड इनटू सम काइंड ऑफ मोरल अपलिफ्टमेंट? आपका आंसर अपने आप को देना है, राइट. अगर इसका आंसर मान लीजिए यस होता, तो फिर वाई द नंबर ऑफ प्लेगराइज थिंग्स दे आर इंक्रीजिंग. द स्टूडेंट इज कमिंग विद 5 पेजेस ऑफ बेस्ट लैंग्वेज ऑन द अर्थ, बट जब उससे पूछ लो तो एक भी लाइन का मीनिंग पता नहीं. ये एग्जैक्टली यहाँ पे आपको देखना है कि एथिकल प्रिंसिपल्स आपका कहाँ वायलेट हो रहा है, राइट. क्योंकि व्हेनेवर आप इस स्टूडेंट लाइफ को छोड़ दो, डोंट गो इनटू मीडिया, और ऐसा होता भी नहीं, सारे मीडिया में जाते हैं, है ना, राइट. किसी भी जगह जाके इस टाइप का बिहेवियर इंकरेज नहीं किया जाएगा. ये सुनो, चाहे स्कूल टीचर आप बन जाओ या यूनिवर्सिटी टीचर बन जाओ, मीडिया में चले जाओ, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, राइट. बिकॉज ये जो आपने किया है बाकी लोग भी करना जानते हैं, राइट. देन हाउ वी आर डिफरेंट? ओके, देखो पता है क्या, आई विल नॉट न्यूमरेट द बुलेट पॉइंट्स जिस पे AI एंड एथिक्स के बारे में अक्सर स्पीकर्स बोलते हैं, राइट, कि ओके इट इज़ सर्विलांस का एक बहुत अच्छा टूल है, जैसे यू हैव सेंड ऑल योर पर्सनल डेटा, राइट, थ्रू गिबली इमेजेस, है ना. एक ही दिन में पूरा वर्ल्ड गिबली पे आ गया, राइट, विदाउट रियलाइजिंग दैट
they people, they are collecting your photo, facial data to train their model. यहाँ सब लोग लगे हुए उसके पीछे, ठीक है ना. 2-3 दिन के बाद समझ में आया लोगों को, you know, activists they cried out, they cried foul, you know, कुछ ऐसा हो सकता है. But by the time तो, you know, lot many data was there. तो अब बोलेंगे AI के पार्ट पे ethics क्या है? Ethics is that they should not do like this, because they know that what is my name. For example, if I open ChatGPT and I don't log in, normal user, right? Unknown to AI. If I write something, it knows that it is me. Hello professor आ गया. उसके बाद शुरू करता है लिखना, generate करना. How does it know? Because उसका आपका डेटा सारा उसके पास है. Yes or no? Surveillance means आपका एक मूव रिकॉर्डेड है आज के दिन. कौन करता है ये? जो आपका डेटा कैप्चर होता है ना, उसको प्रोसेस करने वाला AI सिस्टम है हमेशा. तो सारे पैटर्न्स आपको पता है. अगर आप देखिएगा फेसबुक पे बहुत पहले, आई थिंक नाउ 7 years, देयर वाज ए डॉक्यूमेंट्री, एंड आप उसको देख सकते हो अभी जाके. दैट इज सोशल डायलेमा. नेटफ्लिक्स पे अभी भी होगा, थोड़ा पुरानी हो गई बट बात बिल्कुल सही है अभी भी. वो कैसे क्या बताता है? तो फेसबुक के एम्प्लॉयज जो अंदर ट्विटर के एम्प्लॉयज की हाउ डू दे वर्क, नीचे से निकल, दे एनालाइज योर पैटर्न कि यू आर पोस्टिंग सम वीडियो, यू लाइकिंग सम वीडियो, वाचिंग सम वीडियो, कमेंट्स एक्सेट्रा, दिस ब्ला ब्ला ब्ला, सारी चीजें. वो क्या करता है? इट नोट्स वेरी मेटिकुलसली योर एवरी इंटरेक्शन विद द कंटेंट, एंड देन अकॉर्डिंगली आफ्टर सम टाइम तो मशीन लर्निंग मॉडल आपको क्या है? इट क्रिएट्स ए मॉडल. उसका मैनिपुलेट क्रिएट करते हैं ना फिजिकल, उसमें सोल में वैसे एक आपको मॉडल क्रिएट होता है. एंड दैट इज डन थ्रू अनकॉन्शियस साइकोलॉजी. अनकॉन्शियस मीन्स कि आपको भी पता नहीं चलता आपकी साइकोलॉजी का, बिकॉज वो अनकॉन्शियस लेवल पे है, राइट? नॉट एट द कॉन्शियस लेवल. कॉन्शियस का तो पकड़ लोगे आप. यस और नो? अनकॉन्शियस साइकोलॉजी यू योरसेल्फ डोंट नो, राइट? एंड उसी से हम लोगों को क्या है? मैनिपुलेट किया जाता है. तो अगर सोशल डायलेमा आप देखोगे ना, दे विल एक्सप्लेन कि कैसे ये लोग करते हैं, एंड हाउ social networks then manipulate you, right? Through sending messages, prioritizing your feeds, offering the ads, है ना? Because उनको पता चल गया आपका, और वो अब वो चीज़ enhance हो गई है AI के आने के बाद. अब तो आप लोग सब कुछ जानते हो. एक चीज़ हम इस चक्कर में है कि हम किसी को अपने घर का एड्रेस ना बताएं, है ना, किसी अनजान आदमी को, और वहाँ सारा सब कुछ पता है सबको, ठीक है ना? ओके. तो AI जो सर्विलांस है ना, इतना कमाल का है, इससे आप बच नहीं सकते हो. सिंपली आप बच नहीं सकते हो, राइट? तो AI एंड सर्विलांस ये एक बहुत बड़ा इशू है. AI एथिक्स में की है. सिस्टम्स जो हैं दे शुड नॉट बी हार्मफुल सिस्टम, राइट? हालांकि थ्योरेटिकल बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी डिक्लेरेशंस हैं AI एंड एथिक्स के बारे में, वो क्या करते हैं? सिस्टम को सेफ बनाने में, लेस हार्मफुल और नॉन हार्मफुल एंड रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए. नाउ दीज आर ओपन एंडेड कंसेप्ट्स. व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी? व्हाट इज non-harmful, impact of AI? Open to debates. For example, Gaza war में Israel is using one AI application, which is known as Gospel, GOSPEL. आपको पता है? नहीं मालूम. Definitely नहीं मालूम होगा. क्यों? Because the agenda by the news networks and the governments is something else. अभी जैसे आपको AI वेव पे चढ़ाया जा रहा है, राइट? सो इसका दूसरी साइड प्रोजेक्ट अगर कर दिया, देन यू विल लूज फेथ इन AI, है ना? एंड देयर मार्केट विल सफर. अब मुझे आप बताइए, आज के दिन करंटली अराउंड 4-5 वॉर्स गोइंग ऑन बिग स्केल पे, एंड दे आर मोस्टली फाउट विद AI. मोस्टली किसी एक के बारे में भी अगर आपने कभी मीडिया में कोई भी रिपोर्ट पढ़ी हो,
आप जाके देखना उसमें, गूगल पे सर्च करना, अगर मिल जाए तो आपको, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि कैसे इसको वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन बना दिया गया है। एंड गूगल many years back, गूगल के एम्प्लॉयज ने ये अल्टीमेटम दिया था दैट वी विल नॉट वर्क ऑन द AI टेक्नोलॉजी फॉर द वॉरफेयर। ये बाकायदा उनका वो है, एक प्रॉमिस था गूगल का कि हाँ ओके वी विल नॉट डू इट। Yes, they have been recently found assisting Israel in that Gaza. How? If you can explain a little bit, how? See, gospel and AI technologies वो हैं कि they identify the targets within 10 seconds based on many factors, movement, concentration of the telephone numbers and thermal imaging and so many parameters they have. So automatically it analyzes and then okay fine. That's why they are able to destroy so many things. But we people don't know about this, है ना? We are after generating AI now. You have to present something through PPT. Okay, tell me the information about the AI and the ethics so that I can present here. We are interested in that. क्या हो जाएगा उससे? कुछ भी नहीं होगा। आपका कॉग्निशन तो फ्रीज हो गया ना, आपका इंटेलेक्ट इज फ्रीज बिकॉज इंटेलेक्ट इज नॉट सीइंग द अदर पार्ट ऑफ इट एंड द नेटवर्क्स विल नॉट अलाउ यू एवर। कितना बड़ा एथिकल वायलेशन एआई। हिंदू पब्लिश दिस न्यूज गॉस्पेल, यस, बट ओनली वंस, दैट्स इट। उसके बाद वो भी नहीं किया। आप लोग सिंस यू आर जैन जी, मैं जैन जी को बहुत मैं रिगार्ड करता हूँ, पता है जैन जी बहुत रिगार्ड फुल लोग हैं मेरे लिए, बिकॉज मेरी दो बेटियां वो जैन जी वाली हैं और सुपर्ब हैं वो दोनों के दोनों कमाल। ओके, सो व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू डू सम पर्सनल थिंग ऑन नेट, आप तुरंत में एक इनकॉग्निशो विंडो खोलते हो, है ना? यस और नो? गूगल पे क्रोम में इनकॉग्निशो कितने लोग करते हैं? सारे के सारे, बिकॉज इनकॉग्निशो में योर हिस्ट्री इज नॉट ट्रैक्ड, पता है ना? और बोल क्यों नहीं जरूरत है? So, क्या कुछ तो गड़बड़ है उसी आईडी में, कुछ तो गड़बड़ है, कोई बात नहीं, कोई डेटा उसमें वो नहीं होता, एकदम बिल्कुल प्राइवेसी के साथ। आप गूगल पे जाके अभी सर्च करना, शायद 3 महीने की बात है, एंड इट वाज रिपोर्टेड इन द न्यूज़पेपर्स आल्सो। गूगल हैज ऑल द डिटेल्स व्हिच यू हैव डन थ्रू इनकॉग्निशो मोड, उनके पास है वो। दे एडमिटेड दैट इन द कोर्ट कि हमारे पास है एंड वी विल डिलीट दिस डेटा, उन्होंने कहा। लेकिन इकट्ठा तो किया, इकट्ठा तो किया था, क्या पता क्या यूज हुआ हो। यस और नो? सिमिलरली देयर वाज ए केस, आई थिंक कहाँ था, यूएस में था। तो उसमें क्या, एक मर्डर हैपेंड इनसाइड ए हाउस। पुलिस आई, उनको कुछ मिला नहीं ऐसे करके, ओनली द लेडी वाज लाइंग डाउन। Then they contacted Alexa. Alexa, अब ध्यान से सुनना पड़ेगा, तो हिंदी में ज़्यादा बोलने की आदत है मेरी, हिंदी मेरी एक्चुअली फर्स्ट लैंग्वेज है। They contacted Alexa that okay, tell me how many people work there. They said no, we don't have the data. How can we tell? We to only get the prompt when somebody says, hey Alexa, yeah Alexa, tell me this. Our job starts after that. Okay, but one of them are very smart person, the policeman. He said, then how you are able to determine that the person has spoken Alexa? It means you are listening to the whole conversation. Yes or no? You are listening to the whole conversation, and then your word of interest comes. Then you immediately pop up. Yes or no? And they finally agree to yes, we are listening. They said yes, we have the data. वो उन्होंने दिया, then they find out कि एक नहीं 2 मर्डरर हैं और उसको जेल भेजवा, वो सारा सब कुछ। आप लोग क्या बताएंगे? नहीं, we don't listen, we don't know, ठीक है, हमें कुछ बोलता है तब हम कर देते हैं।
It is listening all your private conversation. And my daughter, she told me once, I don't know how far it is true, but since if she speaks, then I listen. कुछ ना कुछ बात उसमें होती है जरूर. I have noticed this many times. वैसे बोली पापा एक काम करते हैं, चलो अभी ना we will speak something. वो तो एलेक्सा तो बगल में है, सुन रहा है. हम पाकिस्तान कुछ ऐसे बात करते हैं ऐसा करके. ठीक है, तो 4-5 मिनट किया. बाद में मैंने क्या किया, when I searched my Google, तो उसमें जो वो सजेस्ट करता है ना ऑटोमेटिकली, उसमें पाकिस्तान बार बार आ रहा. सी Not just Alexa, it happens on the phone as well. आपके apps पे भी suddenly वही ads answered आनी शुरू हो जाती है जिनके बारे में आप बात कर रहे होते हो या probably आपने एक आधा बार से ही search किया होता है या कुछ किया होता है. Are you getting what I am saying? Yes. Yes. This is AI ethics. Basically, there are no ethics. बोलते तो हैं ये लोग कि हाँ डिक्लेरेशन कि एआई सेफ्टी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बनाएंगे, सब कुछ है, फाइन ओके. बट आप देखना कि कभी प्रैक्टिस में फॉलो होते हैं क्या ये? कभी नहीं होते हैं. ओके, जैसे आज मैं क्रेडिट कार्ड का अपना बिल पे कर रहा था, तो आप जानते होंगे सभी कि क्रेडिट कार्ड में देयर इज ए मिनिमम पेमेंट का ऑप्शन एक रहता है, एंड दैट इज़ वेरी डेंजरस ऑप्शन, बिकॉज वंस यू click that and pay minimum amount, for example 50,000 आपका outstanding आपको देना है, they will say okay you pay minimum 10,000 or 15,000 and then बाद में इसको पे कर देना. then उस rest of the amount पे you have to pay a very very heavy interest. by default SDFC Bank selects the auto enable mode with minimum payment so that once the date is overshot and then इमीडिएटली आपका इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाए. टोटल वायलेशन ऑफ द एथिक्स. एंड ये डार्क पैटर्न्स बोलते हैं इसको. दिस इज नोन एज डार्क पैटर्न्स. पता है आपको डार्क पैटर्न्स क्या होता है टेक्नोलॉजी में? इतना सिंपल तरीके से मतलब आप समझो इसको कि वेन एवर यू आर गोइंग टू बुक सम टिकट, तो इंश्योरेंस का पैसे पे बाय डिफ़ॉल्ट टिक रहता है उसमें, चाहे वो 35 पैसे का इंश्योरेंस हो या 1 रुपये का हो या 20 रुपये का हो. बाय डिफ़ॉल्ट दैट टिक दैट है ना. अब इतना कौन देखता है? नेक्स्ट 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 नेक्स्ट. एंड जब बिल आता है तो उसमें आपका वो. एंड देयर आर सो मेनी डार्क पैटर्न्स. अमेजोन पे जाते हो आप, सारा वो पूरा डार्क पैटर्न के बगैर वो ऑपरेट ही नहीं कर सकता. या सुनो, ओनली वन लेफ्ट, ओनली वन पीस लेफ्ट. जिसको भी सर्च करो एक ही बचता है वो हमेशा वहाँ. देखा ना आपने? ऊपर जाके देखना ध्यान दे, वो सब एआई वाला चक्कर है उसमें. सो अगर एआई और एथिक्स की बात की जाए ना, तो मैं तो देखो हमेशा एक बात ही कहता हूँ जो मैंने वहाँ भी बोला, दैट वी शुड स्ट्रेंथन आवर मोरल फैब्रिक मोर देन what outside world needs. Because despite telling that okay AI बहुत अच्छा है, ये तो इंक्रीज करेगा हमारी कैपेबिलिटी, ये करेगा वो करेगा, बट अप टिल नाउ वी आर हैविंग ए वेरी बैड एक्सपीरियंस विद AI. बच्चे कुछ सीखने को तैयार नहीं है. टीचर्स को एक सेफ वॉल मिल गया, वो भी कुछ प्रेजेंट करते हैं तो वहाँ से ला के देते हैं. रिसर्च पब्लिकेशंस दे आर ऑल मेड अप. कहाँ है वो फिर वो? डू यू एक्सपेक्ट दीज थिंग्स टू calm down? No, they will increase. वो इंक्रीज ही होनी है. कहाँ है एथिक्स? तो आपको यू हैव टू डेवलप योर ओन मॉडल कि नहीं मेरा ये है, मैं चाहे मैं 2 वर्ड्स बोलूँ अपने मुंह से, लेकिन दे शुड बी माई ओरिजिनल सेंटेंस, एंड आई विल यूज द AI टू समराइज, टू सी द बुलेट पॉइंट्स, and at best I will seek some explanation which I will explain in my own words. I will speak and I'll write in my own words so that मेरा जो ये mental engine है ना इसकी थोड़ी exercise हो. आ रहा है समझ में? अगर इसको एथिकली आप यूज़ करो ना, ये टेक्नोलॉजी कमाल की है. मैंने आपको बताया, आई वॉज ट्राइंग टू लर्न पाइथन फॉर 5 years unsuccessfully despite best of my efforts. Hours and hours gone waste.
जिस दिन चैट जीपीटी आया विद इन 1 month आई वॉज एक्सपर्ट ऑफ पाइथन. आज भी मुझे सिंगल कोड लिखना नहीं आता उसका. बट आई हैव जनरेटेड एटलीस्ट 100 scripts codes for media tasks, for example. So we have some data, textual data of news for the last 6 months, 5 months or so from some newspapers, soft copy. I want to see the number of words, कितने कितने यूज़ हुए हैं ना. I want to do the sentiment analysis, कि sentiment क्या है इस न्यूज़ का एंड पूरे टेक्स्ट का, राइट. पॉजिटिव नेगेटिव एंड स्कोर, मतलब -1 से लेके 1+1 तक बीच में उसका स्केल पे. देन आई कैन फाइंड आउट कि इसमें प्रोमिनेंट पैटर्न क्या क्या आ रहे हैं. ठीक है. I can find out कि what are the expressions which are used frequently, repeatedly, so that I can find out the thinking process of the particular newspaper about some issue. Yes or no? And many more. अब ये काम आप डिस्पाइट योर बेस्ट एफर्ट्स नहीं कर सकते हो, मैनुअली हो ही नहीं सकता. बट जब आप पाइथन पे इसका कोड जनरेट करते हो विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी और डीप सीक, फॉर दैट आपको थोड़ा सा पाइथन का ये आना चाहिए, हाउ टू इंस्टॉल, राइट, हाउ टू एग्जीक्यूट, दैट्स इट. कुछ भी पता नहीं होना चाहिए पाइथन का. कोड वो दे रहा है, कॉपी करो, यहाँ से डालो, सेव करो एंड उसको रन करना है. आउटपुट आप देख लेना आपके हिसाब से है अगर क्या. इफ़ नॉट देन उसको बोलना भाई आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस. चैट जीपीटी में प्लीज़ मॉडिफाई द कोड. उसको बताओ अच्छे से कि ये मैंने चाहा था कि ऐसा करें एंड इट इज़ डूइंग दैट, प्लीज़ मॉडिफाई. देखना फिर मॉडिफाई करके आपको देगा कोड. अब वो करना क्या है, क्यों सीखनी है पाइथन. आप सीख लेना पाइथन, 10 साल में सीख जाओ तो मुझे बताया ना. जब आप सीखोगे ओके, आप कोड डालना सीखोगे, राइट. आउटपुट क्या, बात आउटपुट की करते हैं ना. आपने कोड लिखा, एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा है, उसकी एरर्स इतनी है, उसकी पाइथन के प्रिंसिपल्स इतने ज़बरदस्त हैं. आपने एक लाइन में भी एक भी स्पेस दे दिया तो एरर शो करेगा. अब सुलझाते रहो एरर, किस लिए ज़रूरत है. आपको अपना काम करना है, सेंटिमेंट एनालिसिस करना है, कोड जनरेट करो, रन ऑन पाइथन. बगल में जो डेटा है ना आपका, उसको अटैच कर दो उसके साथ, दैट आई हैव ए डेटा इन टेक्स्ट फाइल, नाम ये है उसका. एक फोल्डर में डाल के एग्जीक्यूट कर दो, वहाँ से उठा लेगा उस डेटा को जो आपने एनालाइज करना है. यस और नो. आउटपुट कैन बी इन योर डिजायर्ड फॉर्मेट. उसके बाद भी इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्या है सेंटिमेंट एनालिसिस, व्हाट इज दिस स्कोर, हाउ शुड आई इंटरप्रेट, प्रॉम्प्ट लिखो ना फिर अगला. इट विल टेल यू कि ओके ये ऐसे ऐसे है. कितना सिंपल है. नाउ दिस इज एन एथिकल यूज ऑफ इट. इसमें कोई गड़बड़ नहीं, आपने लर्निंग के लिए कर रहे हो. इसमें कोई प्रिंसिपल वायलेट हुआ, टेल मी. कहीं किसी का प्लेगराइज आपने लिया, नहीं. आपकी नॉलेज बढ़ी, यस. मैंने अपने सीवी में लिखना शुरू कर दिया, आई टीच पाइथन, और मैं कितने लोगों को पाइथन सिखा ली मैंने. पाइथन अगर पूछने लग जाए ना कोड खोल के ये क्या है, मुझे पता नहीं. एंड सी दीज टेक्नोलॉजीज दे want you independent, not dependent on somebody, that I'm a teacher of Python, every time you should call me, sir ये कोड कैसे आएगा. नहीं, आपने सीख लिया ऐसे कोड जनरेट करना है, एग्जीक्यूट करो, आप ही इसको मेंड करो, कोड को अमेंडमेंट उसमें डालो अगर कोई दिक्कत होती है तो. यस और नो. सो जस्ट आप टेक्नोलॉजी का डीएनए पहचानो. डीएनए क्या है इसका. इफ़ यू अप्रोच दिस टेक्नोलॉजी थ्रू द ओल्ड मेथड ऑफ लर्निंग देन यू विल फेल. फिर क्या है कि आप अनएथिकल साइड पे जाओगे, राइट. अपनी असाइनमेंट बनाओगे, वहाँ से पैराफ्रेज करोगे, ये करोगे, वो करोगे. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. एक हैक बताऊं, वैसे तो कई सारे हैक हैं एआई में, एथिकल हैक्स. देखो, जहाँ भी आप इंटरव्यू देने जाते हो ना, तो वहाँ की कुछ टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, ग्लॉसरी, जो कि बहुत हाई फाई होनी चाहिए, सो दैट पीपल दे नो कि हाँ तो बड़ा इंटेलिजेंट है. भाई स्मार्ट लोग तो ऐसे करते हैं ना. तो आप क्या करो,
प्रॉम्प्ट डाल के जनरेट करो व्हाट आर द हाई साउंडिंग मीडिया वर्ड्स इन मीडिया रिसर्च या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या वट एवर, जो भी आप प्रॉम्प्ट में डालोगे, और उसकी एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन एक लाइन में. इट विल ब्रिंग आउट विथ 20 वर्ड्स, टॉप वर्ड्स जो यूज़ होते हैं. आप उनको रट्टे मार के चले जाना और देखना फिर आपको सैल्यूट कैसे मिलते जाएंगे. देखना आता वो कुछ नहीं है ऑफ कोर्स वो ऑब्जेक्टिव नहीं है इसका, बट मैं कह रहा हूँ कई बार क्या होता है हमें आता सब कुछ है, वी आर नॉट एबल टू प्रेजेंट, वी आर नॉट एबल टू लीव द इम्प्रेशन ऑन अदर पर्सन. ट्राई स्पीकिंग इन द टेक्निकल लैंग्वेज सो दैट दे कम टू नो कि हाँ यस पता है कि नहीं. जैसे हम लोग क्या करते हैं एज ए टीचर, अभी मैं IKS का भी टीचर हूँ, इंडियन नॉलेज सिस्टम का, जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं ना, इतना तो मुझे आता नहीं है, बट पतंजलि योग सूत्रा मुझे अच्छे से आता है. पतंजलि योग सूत्रा, राइट. तो जहाँ भी मतलब लेक्चर देने जाते हैं हम लोग तो पतंजलि योग सूत्रा पे ही ज़्यादा बोलते हैं. उस पर सब कुछ है, आपका आज की जो आपकी लाइफ चल रही है ना उसके बारे में भी उस पर एग्जैक्टली बिल्कुल फिट बैठता है. कैसे, मैं बाद में इसका AI से इसको कनेक्ट करूँगा, आप सुनना ध्यान से एक बार. उसमें सत्व दीर्घ काल है नैरंतेरे सत्कार सेवित दृढ़ भूमि, मतलब इफ़ यू लर्न समथिंग, सत्व दीर्घ काल है मतलब लंबे समय तक. नैरंतेरे मीन्स कंसिस्टेंटली, continuously, without break. Satkar sevita, with respect. Then you are firmly established. सत दीर्घ काल है नैरंतरे सत्कार सेविते दृढ़ भूमि, यानी भूमि में जैसे पेड़ खड़ा होता है ना एकदम दृढ़, बिल्कुल आप अपनी नॉलेज में वैसे हो जाते हो. नॉलेज मीन्स किसी भी काम में. आप देखना शॉपकीपर्स इस बात को अच्छे से जानते हैं, यस और नो. सत दीर्घ काल में दुकान लगातार खोलते हैं ना, कोई गैप नहीं आता बीच में. नैरंतर्य लगातार सत्कार के साथ पूजा करते हैं ना सुबह शाम खोलने बंद करते वक्त. विद AI यू कैन लर्न IKS, इंडियन नॉलेज सिस्टम, आप बड़े आसानी से लर्न कर सकते हो. एथिकल पार्ट पे अगर बात करें तो एथिक्स ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपके माइंड में कोई विचार है, ध्यान से सुनिएगा. एथिकल यूज़ क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे माइंड में एक विचार है कि जो सच है ना, ट्रुथ इज ऑलवेज हिडन बिहाइंड द कर्टेन्स. ठीक है, आपको एक आइडिया कहीं से आता है ऐसे, या किसी ने बताया है, कुछ ऐसा करते हैं. ट्रुथ इज बिहाइंड हिडन बिहाइंड द कर्टेन्स. ओके, अब आप ऐसे कहीं जाके बोलोगे, एक्सप्लेनेशन दोगे तो हु विल लिसन टू यू, है ना. गो टू ChatGPT और योर क्लॉड and write the prompt कि truth is hidden behind or it is not easily seen, it is unseen. Can you give me some mantra from the IKS or Indian knowledge system or scriptures which can support this? आपके सामने 3-4 मंत्रास with their explanation. हालांकि प्योर साइड पे जाओ तो एक्सप्लेनेशन तो वेस्टर्नर्स ने देखिए, वो आई डोंट बिलीव मच इन दैट, बट 70-80% तो आपको बता ही देगा. नाउ यू हैव द knowledge, mantras knowledge, because जो भी scriptures में तब लिखा था, right, वो eternity के लिए लिखा है. ऐसा नहीं कि वो ख़त्म हो गया. eternity यानी जब तक ये रहेगा ना, कॉस्मोस रहेगा, तब तक वो लागू है. ऋग्वेद का मंत्र है बहुत पुराना, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात असत्य ना बुर्यात. How it is connected to your this? See, AI should be used for upgradation of your intellect, right? This is the most ethical application of it. क्या सच बोलना चाहिए हमेशा, असत्य नहीं बोलना चाहिए, और कड़वा सच नहीं बोलना चाहिए. ये तो प्रॉब्लम हो गई. सच तो हमेशा कड़वा होता है. शुगर क्या मतलब कैसे करोगे, शुगर कोट करके बोलोगे? नहीं. विद AI सिस्टम्स उनमें आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी कि सच बोलना चाहिए, ये सबको पता है ना. इफ़ यू वांट टू स्पीक द अनप्लेजेंट ट्रूथ, देन स्पीक इन सच ए प्लेजेंट वे दैट इट डजंट हर्ट एनीबॉडी. आपकी बात भी कन्वे हो जाए एंड आगे वाले को बुरा भी ना लगे. यस और नो? एंड देयर आर वेज, यस.
आप समझ रहे मेरी बात? टेल मी, ऋग्वेद कब लिखा गया था? जब ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स हुआ था तब। आज भी इक्वली एप्लीकेबल है, आगे हमेशा रहेगा, हाँ कि ना? And there are multiple reference like this, multiple from various scriptures. और उस चीज़ का आगे अब करियर भी है IKS पे, अब करियर बनने जा रहे हैं IKS पे। अब तक तो वो फॉरगॉटन नॉलेज थी कि अरे कौन पूछता है इनको। सो वी हैव बीन मिस एजुकेटेड इन सच ए वे दैट स्क्रिप्चर्स का नाम लेते कई लोग इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं ऐसे ही। नाउ दिस इज ए वेरी गुड साइन ऑफ द अनएजुकेटेड पीपल। अविद्या, अविद्या मीन्स जो चीज़ जैसी है उसको वैसे के अलावा देखना। सो टू सी द थिंग विच इन ए डिफरेंट वे देन एक्चुअली इट इज। वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है ना सारी। यस और नो? जब से AI आया है मेरी लाइफ में, मेरा एथिकल यूज इतना ज़बरदस्त हो गया दैट नाउ आई हैव ऑल द रेफरेंसेस, ऑल द ज्ञान टू सपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल मुझे कहीं लेक्चर के लिए बोला जाता है, मैं तैयारी तो मुझे भी थोड़ी बहुत करनी पड़ती है तो मुझे लगता है यार ये किसने कहीं बोला था कि वेदों में सब ज्ञान है। ओके, तो मैं अपना विचार सामने रखता हूँ एंड देन इट गिव्स मी द सपोर्टिंग रेफरेंसेस विच आई क्रॉस चेक देन। आ रहा समझ में? फॉर एग्जाम्पल योग सूत्रास, ध्यान से सुनिएगा, ये तो कमाल की चीज़ है। मतलब सो मैं AI का एथिकल यूज़ बता रहा हूँ, हाउ यू कैन यूज़ इट टू इंक्रीज योर नॉलेज, जो कि अल्टीमेट हर एक टेक्नोलॉजी का एक पर्पज़ रहता है। संस्कृत में वो श्लोक मुझे ध्यान नहीं है, बट उसमें उसका मीनिंग ये है कि इफ़ यू वांट टू पुट इम्प्रेशन ऑन अदर्स योर ड्रेस शुड बी गुड, यानी वो फर्स्ट प्रेफरेंस पे आती है। आप लोग जानते हो इस बात को अच्छे से या नहीं जानते हो? कब लिखा था? 2000 साल पहले। आ रहा समझ? पहले आपका वस्त्र, ऐसे बोलते हैं वस्त्र उसमें संस्कृत वाले में, देन वाणी, वाणी कम्स नेक्स्ट। हम लोगों को क्या बताया गया है कि कपड़े कहाँ मैटर करते हैं ज़्यादा बोलने में? अरे आपको देखते ही लोग सबसे पहले अपना इंप्रेशन बना लेंगे, यस और नो? फिर आप वाणी आप बोलते रहो कौन सुनने वाला है? तो क्या पता आपको बोलने का मौका नहीं मिले तो वाणी तो वैसे भी नहीं आई एक्शन में। वस्त्र वाणी, राइट? और फिर वो आता है शायद ज्ञान करके कुछ ऐसा बोलते हैं, वहाँ पे है मतलब 4V and 4C, 5 वकार एंड 5 सकार, यानी जो सै से शुरू होते हैं और व से शुरू होते हैं। वस्त्र वाणी विद्या, यस विद्या, मतलब आपके पास कुछ होना भी चाहिए। ये आरजे वालों की तरह बकवास सारे दिन करते हैं ना जो बैठ के। मैं गाड़ी व्हेन आई ड्राइव इन दिल्ली, मुझे पता नहीं 2 घंटे कैसे बीत गए और बब 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 ये वो 2 घंटे बाद पता लगा क्या क्या मालूम चला आपको? नथिंग क्या नॉलेज अपग्रेडेशन हुआ? भाई मैं तो देखो, फिर मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ मैं आपको। सी ये दीज सेंसेस ना दे हैव लिमिटेड पावर, राइट? दीज आर 5 सेंसेस ना, ये आँख कान गले ये सब कुछ सुनने वाला, ये सेंसेस का डोंट मिस यूज देम एवर, विद ऑल रिस्पेक्ट टू द आरजे पीपल। आप उसको इंटरेस्टिंग भी तो बना सकते हो, नॉलेज भी तो दे सकते हो, नॉलेज भी तो दे सकते हो ना। That's why I'm here. That's why I'm shifted from that media space to here as an academician to bridge that gap. अच्छा पता है क्या होता है? बिल्कुल सही बात है, कई बार कई काम ना ज़बरदस्ती करने पड़ते हैं लाइफ में, है ना? लेकिन इन दैट यू शुड नॉट लूज द फैकल्टी। आप उसी के होके नहीं रह जाते, राइट? एंड ऐसा लोगों को पता ही नहीं है, इसलिए पतंजलि पता है क्या बोलते हैं? वृत्ति सारूप्यम इत्राता। व्हेन यू नो स्पीक लाइक दिस, आर्ज लाइक दिस, देन यू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ विद दैट फॉर अनदर सो मेनी ईयर्स। यानी आपका बिहेवियर बन जाता है, आपको उसमें बुरा भी नहीं लगता। फिर ऐसे ही तो होता है, मतलब कि हाँ ये तो ऐसी तो दुनिया चलती है, अब वो समझ लिया आप हटा दिए वहाँ से ट्रैक से। यस सुनो,
देखो एथिक्स कभी भी ये नहीं बोलेंगे आप लोगों का टाइम वेस्ट कराओ, है ना, बिना बात की चीज़ों में। मतलब जस्ट रिलैक्स, बी हैप्पी। इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारे एथिकल प्रिंसिपल हमें खुश होना अलाउ नहीं कर रहे हैं, है ना। कितने खुश हैं आप में से बताओ, जस्ट रेज योर हैंड्स, हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली हैप्पी? रियली हैप्पी मतलब रियली हैप्पी। 1 2 उधर से था कोई, 3 4 मान लेते हैं। आप हैं? आप अच्छा, आपने इतना ऐसे किया ना यहाँ तक, ऐसे कुछ, आई थॉट कि आप यू आर रेजिंग योर हैंड। चलो 5 लोग मान लेते हैं। देखो दिस इज़ द स्टेट ऑफ अफेयर्स, है ना। इट मीन्स हमारे पास जो भी कुछ है, हमारी टेक्नोलॉजीज ब्ला 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 जो भी है सब कुछ, ये हमें अनहैप्पी बना रहा है, हैप्पी बना रहा है? टेल मी। अनहैप्पी बना रहा है। दिस इज़ नॉट अलाउड इन, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एक्चुअली इन एनी सर्कमस्टेंस। इट मीन्स जो हमारे साथ हो रहा है वो थोड़ा सा हम लोगों का लर्निंग एंड जो थिंकिंग वो गलत है, कहीं ना कहीं कोर्स करेक्शन है उसमें होना चाहिए। या सुनो, अब खाने का टाइम हो रहा है, हाँ 5 मिनट जैसे मैं वाइंड अप करता हूँ। सो एथिक्स के बारे में जहाँ तक की बात है, आप जाके ChatGPT पे देख लेना व्हाट आर द AI एथिक्स, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ वर्ड्स बोलेगा वो, सर्विलांस, प्राइवेसी, वो सारे वो बोलेगा जिसका वो वायलेशन करता है, सारे के सारे करेगा, देख लेना आप, राइट। जनरेटिव AI आप बड़े खुश होते हो ना करके, जनरेट करके। एक्चुअली योर डेटा इज यूज टू ट्रेन देयर ओन मॉडल्स, राइट। अपने लिए वो आपको अलाउ कर रहे हैं। जिस दिन ये काम हो गया फिनिश, आपको बोलेंगे बस पेड है, अब हमारा जो है फ्री का वर्जन ख़त्म हुआ, आप पैसे दो, आपको आदत पड़ गई। जियो इफेक्ट बोलते हैं इसको। पहले 1-2 साल मौज करो, बाद में आदत पड़ जाए तो पैसे दो, ठीक है ना। तो मतलब ये जो मैंने बोला सब कुछ, इट मे नॉट बी एन एकेडमिक, स्ट्रिक्टली एकेडमिक डिस्कोर्स, बट एकेडमिक डिस्कोर्स में समटाइम्स ना बेसिक चीज़ें जो रियलिटी ऑफ लाइफ है वो छुप जाती है, कि डिस्कोर्स हैज़ बिन डिज़ाइन इन दैट वे, नो गुडी वेज। उसमें ऐसे वर्ड्स होंगे, ऐसे मतलब राइम से बोलूँगा मैं, ऐसे इस तरीके से प्रेजेंट करूँगा सो दैट द एकेडमिक ग्रेस इज मेंटेन्ड। बट व्हाट अबाउट द रियलिटी? रियलिटी में क्या, फिर वैसे के वैसे। इसलिए इट्स द बेस्ट टूल एवर डिज़ाइन बाय ह्यूमैनिटी। लेकिन आप देखो उसमें कि उसमें से अपना क्या निकाल सकते हो उसके अंदर, ये आपको सोचना पड़ेगा। जो भी आपको बताया जा रहा है ना, वो इट इज़ जस्ट लाइक द पब्लिसिटी, वो पब्लिसिटी है, दैट विल नॉट सर्व द पर्पज़। जो बिहाइंड द कर्टेन्स है ना, जो भी छुपा हुआ है उसके अंदर, छुपा हुआ तरीका, दैट यू हैव रिटन समथिंग, इफ़ यू सबमिट इट कि ओके गिव मी योर कमेंट्स ऑन दिस, then it will give you some comments. That is the right use, yes or no? That is the actual ethical use. और क्लोजिंग नोट पे बोलता हूँ एक बात, जब भी ChatGPT यूज़ करते हैं ना, उसके प्रोफाइल में जाके सेटिंग्स में देखना, सेटिंग्स में प्रोफाइल मिलेगा आपको, राइट, देखा है कभी? उसमें यू हैव टू टेल इट व्हाट यू आर, इतना बड़ा पैराग्राफ लिखना पड़ता है उसमें। नोट किया है? कभी कोई नोट नहीं करता, बिकॉज हम तो आंख बंद करके। इसलिए अभी आज जाके देखना सेटिंग एंड देन प्रोफाइल। प्रोफाइल में आपको लिखना है, फॉर एग्जांपल, आई एम ए मीडिया टीचर, माय जॉब इज़ टू टीच स्टूडेंट्स एंड डू मीडिया रिसर्च, आई स्क्रैप डेटा, आई एम इंटरेस्टेड इन ट्रेनिंग एंड लेक्चर्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी सारा मैं करता हूँ ना, मैक्सिमम इसको अपने बारे में बताओ, सो दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू जनरेट समथिंग इट विल कीप योर प्रोफाइल इन माइंड एंड इट विल जनरेट दोज दैट इंफॉर्मेशन थ्रू दिस प्रोफाइल। उसको इस तरीके से प्रेजेंट करेगा कि मीडिया टीचर की लैंग्वेज में होगी, ग्रेसफुल लैंग्वेज में होगी सारा, बिकॉज वो उसके थ्रू फिल्टर हो रहा है। अगर आप RJ हो तो उसमें लिखना आई एम ए RJ, मेरा टाइम है लोगों का वेस्ट कराना, 3 घंटे रोज, ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब रुकना नहीं बिल्कुल भी, सारा जो भी उसकी क्वालिटीज़ हैं आप डाल देना उसमें एंड जनरेट स्क्रिप्ट, तो पता चल जाएगा, देखना यस। तो एवरी टाइम यू डोंट हैव टू गिव द प्रॉम्प्ट, बिकॉज आपने एक मास्टर प्रॉम्प्ट दे दिया पीछे उसमें। तो आप जो भी लिखोगे ना सिंपल तरीके से कि जनरेट ए स्क्रिप्ट फॉर एग्जांपल फॉर 15 मिनट्स, तो आपने उसको दे रखा है एक मास्टर प्रॉम्प्ट, तो सारी की सारी बेकार की बातें आपको बोलेगा एंड लच्छेदार तरीके से कि ऐसे बोल देना बढ़िया रहेगा। उसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लो कि आप और क्या
और ज़्यादा कैसे वेस्ट कर सकते हो टाइम लोगों का। मैं थोड़ा बायस हूँ इस बात से, डोंट माइंड, कि मैंने 5-7 घंटे वेस्ट किए हुए, तब जाके मुझे इरिटेट हुआ, अरे क्या कर दिया इन लोगों ने यार। इससे अच्छा बंद करके यूट्यूब से लेक्चर लगा के सुनते हैं, जो अपने एकेडमिक लेक्चर्स होते हैं, राइट, MP3 में कन्वर्ट करके उसमें सुनते हैं आराम से। उसमें पता चला आधे घंटे में ही आपका लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया। चलो, थैंक यू सो मच। हाँ, सॉरी आपको वेट किया करवाया आपके इसके लिए, थैंक यू। The ethical considerations and how some searches in ChatGPT are, ethical when you're using it to learn for yourself, right? But according to a Washington Post study, one prompt from ChatGPT that generates a 100-word answer, say for writing an email or for a short paragraph, it uses water equivalent to 500 ml for one search. The total energy consumption of AI exceeds that of a nation on a daily, on like a monthly basis. So how is this ethical when we are putting this amount of energy use into one search? So I mean, a few teachers are sitting here, so they must have attended some of my training workshops in HRDC, right, or the lectures. So I have been saying this since last 12 years, not for AI but Google search, right? आपको पता है जब आप एक Google search करते हो, how much carbon dioxide do you release in environment? कितना? 0.5 grams एक सर्च पे, क्योंकि बैक एंड पे सर्वर्स दे हैव टू डू द वर्क, दे हैव टू सर्च, है ना। सो जब सर्वर काम करते हैं तो प्रोसेसर को काम करना पड़ता है, एज ए रिजल्ट द हीट गेट्स जनरेटेड, देन उसको कूलिंग सिस्टम लगाना पड़ता है उसके लिए, राइट। सो ये तो बहुत पुरानी बात है। अभी AI आप कभी डाल के देखना उसमें ChatGPT में कि ओके, what amount of carbon dioxide one query generates in your search, it will not answer you, कोई भी आंसर नहीं करेगा। अभी रिसेंटली देयर वाज ए न्यूज़ आइटम, उसमें बताया गया है कि हाँ, जो गूगल सर्च मान लीजिए 0.2 ग्राम्स या 0.3 ग्राम्स वटेवर, उसका 15 टाइम्स एक क्वेरी पे आपका ChatGPT हवा में छोड़ता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, 14-15 टाइम्स। एंड ग्रॉक इज़ मोर यूज़र फ्रेंडली, ग्रॉक करता है सिर्फ 3 या 4 गुना, दैट्स इट। आप गूगल पे सर्च करना, अभी न्यूज़ आई थी, पता चल जाएगा आपको, राइट। इसलिए तो बोलते हैं ना कि एथिक्स ये है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इनकी ट्रांसपेरेंसी अभी तक थी ही नहीं, 2 साल से काम कर रहे हैं। आई हैव बिन आस्किंग दिस क्वेश्चन ऑन मंथली बेसिस, दे आर नॉट गिविंग एनी आंसर, क्योंकि द एल्गोरिदम हैज़ नॉट बीन प्रोग्राम्ड दैट वे। उसके पीछे भी एजेंडा रहता है ना। एक बार ChatGPT पे कुछ मैंने लिखा तो उसमें आंसर आया कि इन 2050 ह्यूमैनिटी विल बी टेकन ओवर बाय द AI, ठीक है। आई सेड व्हाट विल बी द डेवलपमेंट्स इन 2050, उसने कुछ बात बताई, उसमें था कि मे बी द ह्यूमैनिटी विल बी टेकन ओवर बाय AI बिकॉज ह्यूमन्स दे हैव डिस्ट्रॉयड दिस प्लैनेट। ये आंसर था उसका, राइट। ओके, मैंने अपने मीडिया ग्रुप पे शेयर किया, आप अगर मेंबर हैं तो उसके, कि ये ऐसे से बोल रहा है। 3 दिन बाद सेम क्वेश्चन डिफरेंट आंसर, सेम क्वेश्चन डिफरेंट आंसर। नो, माइट बी it will act in the coordination with the humanity and increasing, see 2-3 दिन के अंदर थॉट प्रोसेस कैसे चेंज हो गया, पीछे से एल्गोरिदम चेंज हुआ। ग्रोक गालियाँ देने लग गया था अभी बीच में, तो उसको एल्गोरिदम को चेंज किया। आ रहा समझ। तो कार्बन फुटप्रिंट तो है ही, यस, लेकिन एनवायरनमेंट की कौन केयर कर रहा है? कौन केयर करता है बताना। हमारा खुद का कार्बन फुटप्रिंट पता है कितना ज़्यादा है, आप जाके देखना। What is my carbon footprint? It will ask you certain question, 10-15. You will be surprised to know कि कैसे सारे प्लेनेट को बर्बाद करने में तुले हुए हैं, ठीक है ना। हम अपनी बात करें तो 15 और पूछ रहा है, तो उसको 15 टाइम और कर रहा है, बढ़ा रहा है उसको। हाँ, लेकिन एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा आपकी एक्टिविटीज़ की। मान लीजिए आपके पास एक परफ्यूम है, आपको ज़रूरत है, आप 3 यूज़ कर रहे हो, तो वो इट विल इंक्रीज योर स्कोर बाय सर्टेन नंबर, एंड बाद में क्यूमुलेटिव स्कोर निकाल देगा,
ठीक है, एक जूता है, पैर इसमें आपके पास 3 हैं, ड्रेसेस कितनी हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा आपसे वो, राइट। तो एआई और एनवायरनमेंट का डायरेक्ट थ्रेट है, क्योंकि ये वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो आप सोच रहे हो। इसका कार्बन फुटप्रिंट भयंकर वाला है, ज़बरदस्त, लेकिन आपको बताया नहीं जाएगा। मोस्ट अनएथिकल पार्ट, ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। आप खुश रहो, चैट जीपीटी करते रहो आप, कुछ भी जाके उसमें। Thank you so much, sir, आपके आंसर के लिए. Now to bring this session to a close, I'd like to call Ms. Garima Jain on the stage to deliver a vote of thanks to our esteemed guest. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू सर, किताबों से बाहर निकाल के हमें रियल लाइफ की कुछ बातें बताने के लिए. आई थिंक दैट वाज द पर्पस ऑफ दिस मास्टर क्लास, आई इफ़ यू अग्री विद मी, बिकॉज आई कैन सी अ लॉट ऑफ ओ माई गॉड काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस ऑन योर फेस जब ये लास्ट क्वेश्चन सर ने आंसर किया था. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे भी इतनी क्लैरिटी नहीं थी इस टॉपिक के ऊपर, बट नाउ इवन आई हैव दैट क्वेश्चन मार्क ऑन माई फेस, रियली इज़ दैट सो. बट व्हेन ही एक्सप्लेन्ड इट, वो जो लॉजिक उन्होंने बातों के साथ जब जोड़ा था, तब सबके दिमाग में जाके बैठा, राइट. वी वर एक्चुअली वेटिंग फॉर दैट लॉजिक. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग सर, ये एक ऐसा ट्रैप है ना AI वेब, इससे बाहर निकलना किसी के बस की बात नहीं है. दैट्स व्हाट आई बिलीव. अनटिल अनलेस सर के जैसे आप इतना ज़्यादा हाईली एजुकेशनल और नॉलेजेबल आप इंसान हो जाए तो थैंक यू सो मच सर, इस रियलिटी से दोबारा एक बार हमारी परिचय कराने के लिए. थैंक यू टू आवर लवली host and more specifically my students who are sitting here, not just from DME but Kalindi College also. I apologize, आप लोगों ने खाना नहीं खाया है, but मैं आपके साथ हूँ, मैंने भी नहीं किया है. इसके बाद कैंटीन बहुत अच्छी है हमारी, हम बहुत अच्छे से खाना खा सकते हैं. So please enjoy that, and with that I would like to thank my production team who's here, the technical team, the management of DME, everyone from the newsletter team also who are here for the report writing. Thank you so much for joining us. The sessions will go on, for which I think Rashri will give the details आगे और कौन से सेशन आने वाले हैं. But thank you again, once again, for joining us at DME. Thank you. And yes, I loved being an RJ. मैं जब थी तब ऐसा नहीं होता था, but आज yes ऐसा है, just because of a very simple reason. We are not from the education sector, RJs are from the entertainment sector, and हमें strictly बोला गया है कि ऐसे ही बातें आपको नहीं करनी जो लोग नहीं सुनना चाहते. So ultimately we need to work for the organization. So I'm sorry, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती, but that was one profession that I really loved and adored because of a very simple thing. It had innocence at that time. आज because of thanks to AI and the digital platform, it has opened up 360 degree. तो कोई privacy कहीं कुछ नहीं है. तो आप actually वो नहीं हो जो आप देख रहे हो इन लोगों को. They are not like that. Trust me. In real life, they are not like that. All of them are pretending, thanks to this AI and digital platform. But you can't help it. ये job है आपकी, पैसा कमाना है तो जीना तो पड़ेगा, क्या कर सकते हैं. So thank you once again, everyone. To all our guests, the conference has just begun. Please join us tonight at 7 p.m. IST for the second plenary session, which is going to be in online mode, and it will discuss the AI and future of media, ethics and innovation, and we'll have speakers joining us from the US and Nigeria. Now, on the second day of ICANN, which is tomorrow, please join us for the panel discussion that will start from 10:30 a.m. onwards, once again in online mode, and it will focus on gender narratives, empowerment, or polarization in media. The presentations of research papers in technical sessions will occur simultaneously on both days, and the winners for the best paper will be announced during the valedictory ceremony starting from 2 p.m. in the NM Hall, again on day 2. Thank you so much for being here, and thank you once again to Dr. Umesh Arya for taking this session. Thank you.